आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीआरएस पार्टी की जानिब से आज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा और मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदारी न करने के खिलाफ धरने मुनज़्ज़म किए गए। वज़ीर फाइनेंस सहित हरीश राव की क़यादत में सिद्दीपेट में धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी एक झूठी पार्टी है और इस पार्टी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल झूठे हैं, इसीलिए कि ये रियासत के किसानों के धान की खरीदारी करने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर्स की कीमत में इजाफा और इस पर सब्सिडी ना देने से आम आदमी को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस पर बरहमी का इजहार किया। इस धरने में टीआरएस के अरकान असेंबली और काउंसिल ने शिरकत की। दूसरी जानिब वजीर IT और सनत KT रामाराव ने सिलसिला में मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदारी न करने और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। జయశంకర్ సార్ కాళ్ళకు పాదాలకు దండం పెట్టి రాజీనామాలు సమర్పించింది ఎన్జీ కాలేజ్ రోడ్లోనే చరిత్రమైనటువంటి జిల్లా నల్గొండ జిల్లా. ఈ నల్గొండ జిల్లాలో పుట్టినటువంటి బిడ్డలుగా రైతులు ఆ యొక్క వరిధాన్యంతో మాకు పూలగండ వేసినారు. ఇవన్నీ కూడా స్వీకరించాం. నిజంగా కూడా వాస్తవంగా రైతులు ధైర్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. ఎంతో మంది మరి మనం చెప్పిన మాట ఇది చాలా మంది నాటేసి చేయలేదు, పంట వేయలేదు. వారు పాపము ఇవాళ అందరూ కూడా మాకు బాగా పంట పండించే అవకాశం కోల్పోయినామని చెప్పి చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ నిరసన కార్యక్రమం పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. పత్రికా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు. మేము రేపు మోటార్ బైక్ ర్యాలీ, నల్ల జెండాలు దయచేసి ప్రతి ఊర్లో ప్రతి ఇంటి పైన రేపు పొద్దున నల్ల జెండా ఎగరాలి. నేను మొట్టమొదటి మా ఇంట్లో నేను 9 గంటలకే పొద్దునట్టు నల్ల జెండా ఎగిరేస్తా. నల్ల జెండా ఎగిరేసి అక్కడే మరి వేరే ఒక 2 లక్షల చావపల్లి బావపూర్ ప్రోగ్రాం చూసుకుని తప్ప ఇవ్వడం తెలియనటువంటి ప్రభుత్వం మీ ఉంటే చెప్పండి. అబద్ధాలు ఆడడం తప్ప నిబద్ధత తెలియని ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం. అన్ని వర్గాలకు వ్యతిరేకం. రైతులను ఇలా ఇబ్బంది పెడతా ఉంది, రైతులు కాల్చి పెడతా ఉంది. కానీ రైతులకు సాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఇలా మనసులు అనేటువంటి ప్రభుత్వం ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఇలా ఆలోచించారు మనందరం. ఏం చేసింది బీజేపీ? ఒక్కటన్నా మంచి పని చెప్పండి. నరేంద్ర మోడీ గారు మన్ కీ బాత్ అని వారం తప్ప ఇవ్వడం మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి. వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఆనాడు ఎటువంటి మాటలు చెప్పిండ్రు, ఏమేం చెప్పిండ్రు, ఎన్నెన్ని మాటలు చెప్పిండ్రు, ఈరోజు ఏం చేసిండ్రో ఒక్కసారి చూడవలసిన బాధ్యత కూడా మనం ఇది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈరోజు ఛాయ్ పే చర్చ లేదు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వంలో 8 ఏళ్ల తర్వాత మా ఆడబిడ్డలందరూ ఇక్కడనే ఉన్నారు. ఆనాడు సిలిండర్ ఎంత ఉండే, ఈరోజు ఎంత ఉందో మీకు తెలుసు. ఒకటే ఒక మాటలు చెప్పాలంటే సిలిండర్ 1000 అయింది, మళ్ళా కట్టెల పొయ్యి అయింది మన దిక్కు. అంత తప్ప వేరే మార్గం లేకుండా పోయింది. ఈరోజు ఆ పరిస్థితి తెచ్చింది మోడీ గారు. కానీ ఇదే మోడీ గారు ఆనాడు ఏమన్నాడో ఒకసారి దయచేసి మీరు చూడాలి. ఇదే మోడీ గారి మంత్రివర్గంలోని
మంత్రులు ఒక్కొక్కరు ఏమేమి మాటలు మాట్లాడినరో మీకు చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా. ఎక్కడున్నారో మా వాళ్ళు ఇక్కడ ఆ బటన్లు మొదలు ఏం కనబడతలేదు. अरे आन जाइए भाई, उसको चालू करो जरा, उसको चालू करो. इनका स्क्रीन को चाल जी मोदालो मन स्मृति ईरानी. वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की क़यादत में टीआरएस के अरकान असेंबली नागेश्वर राव, वेंकट वीरैया, हरिता वीरैया और दीगर अरकान असेंबली ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस खम्मम के पास मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदारी करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया. उन्होंने मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की. वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 11 अप्रैल को वजीर आला चंद्रशेखर राव नई दिल्ली में तेलंगाना के किसानों को इंसाफ दिलाने की खातिर एक रोजा भूख हड़ताल करेंगे, जिसमें रियासती वुज़रा अरकान पार्लियामेंट हिस्सा लेंगे. तेलंगाना के ज़िले मुल्क की कौमी शाहराह पर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से किए जाने वाले धरने के लिए लगाए गए खेमे को पुलिस ने निकाल दिया. रियासत से धान की खरीदारी के मामले में मरकज के नामुनासिब रवैये के खिलाफ कई मकामात पर टीआरएस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है. मुल्क की कौमी शाहराह पर भी एहतजाज किया जाने वाला था, ताहम हाईवे पर धरने की इजाजत न होने पर हाईकोर्ट की हिदायत के बाद इस खेमे को निकाल दिया गया. इस धरने में रियासती वजीर बहबूदी खवातीन और अतफाल सत्यवती राठौर के साथ साथ दीगर हिस्सा लेने वाले थे. धरने के लिए लगाए गए खेमे को निकालने के बाद टीआरएस के कारकुनों ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया. तेलंगाना की वजीर बहबूदी खवातीन और अतफाल सत्यवती राठौर ने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीआरएस हुकूमत यहाँ पर बीजेपी की मुखालिफ आवाम, मुखालिफ किसान और मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है. उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना से मुकम्मल धान की खरीदारी करे. उन्होंने इंतबाह दिया कि टीआरएस पार्टी तेलंगाना से धान की मुकम्मल खरीदारी के ऐलान तक बीजेपी हुकूमत के आगे नहीं झुकेगी. धान की खरीदारी के मसले पर टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की जानिब से किए गए एहतजाज की अपील के हिस्से के तौर पर उन्होंने जिले महबूबाबाद में रुकने पार्लियामेंट टीआरएस मालूक कविता और दीगर के साथ एहतजाज में हिस्सा लिया. इस मौके पर टीआरएस के कायदीन ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना से मुकम्मल धान की खरीदारी करे. इसी दौरान रियासती वजीर पंचायत राज जरेवल्ली दयाकर राव ने भी हन्नमकुंडा, वरंगल, जनगांव और दीगर मकामात पर एहतजाज में हिस्सा लिया. चीफ विप वरंगल ईस्ट के रुकन असेंबली विनय भास्कर ने हन्नमकुंडा में हुए एहतजाज में हिस्सा लिया. ఆ రోజు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో 30 లక్షల ఎకరాలు కూడా వరి సాగేది కాదు. ఆ మహాత్ముడి, ఆ పుణ్యాత్ముడి, ఆ రైతు నాయకుడి దయ వల్ల, ఆయన ముందు చూపు వల్ల ఈ రోజు 1,10,00,000 ఎకరాల్లో వరి సాగైతోంది. మా బీద బిక్కి రైతు వ్యవసాయ కూలి కడుపు నిండా 3 పూటలు అన్నం తినడం. ఒకప్పుడు ఏదైనా జ్వరం వస్తేనే, జబ్బు చేస్తేనే అన్నం, పండగ వస్తేనే అన్నం. కానీ ఈరోజు 3 పూటలు మరి మా కేసీఆర్ ముందు చూపు వల్ల, ఒక రైతు నాయకుడు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావడం వల్ల గడిచిన 7.5-8 ఏళ్లలో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల మీద ఖర్చు పెట్టడం వల్ల మేము ఈరోజు భారతదేశంలోనే తెలంగాణ అన్నపూర్ణగా 3 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని పండించే స్థాయికి మేము వచ్చాము. అది ఓవలేని నువ్వు మరి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని మా रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि रियासतों से धान की 100% खरीदारी करे ताकि किसानों को फसल फरोख्त करने में आसानी हो. इन ख्यालात का इजहार वजीर दाखिला ने नलगुंडा में मुनक़िदा धरना तकरीब को मुखातिब करते हुए किया. उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक कर रही है. एक तरफ रियासत पंजाब से मौसम रबी के चावल की 100% खरीदारी की जा रही है, जबकि तेलंगाना से यही चावल खरीदने में इनकार किया जा रहा है, जिससे तेलंगाना के किसानों से नाइंसाफी हो रही है. वजीर दाखिला ने कहा कि मरकजी हुकूमत को तेलंगाना के किसानों से 100% धान की खरीदारी को मुमकिन बनाना चाहिए ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके और उनकी पैदावार की खरीदारी करते हुए उनमें एतमाद पैदा किया जा सके.
उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में पिछले 7 सालों में धान की पैदावार में 4 गुना इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना से बॉइल्ड राइस खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जबकि तेलंगाना में मौसम रबी की फसलों में बॉइल्ड राइस की पैदावार मौजूद है। इसीलिए तेलंगाना के किसान की बॉइल्ड राइस रबी में पैदावार करते हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए 100% खरीदारी का तय खून दे। గిరుల సన్నిధి నేల చురుల పెన్నిధి पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। तेलंगाना के अवाम को ये हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी हुकूमत कभी भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करती है, खाली इनका काम ही है लोगों को उछालना, लोगों को जज्बात में लाना, इलेक्शन करना। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। धरना कामयाब होने पर तमाम लीडर्स को मुबारकबाद देता हूँ। मीडिया भाइयों को भी बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना। नाइंसाफी मत कीजिए। हमारे सीएम हिंदुस्तान के नंबर 1 सीएम है, जो किसानों के लिए काम करने वाले सीएम है। जब हमारे मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी साहब ने दिल्ली जाकर दिल्ली मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे खराब लेकर, अरे हम क्या करेंगे, क्या बात करते हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा यहाँ से की खराब पूरा परचेज करना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक ऐसे लोग हैं तेलंगाना के लिए हम जान देने के लिए तैयार थे। उसी तरह हमारे किसानों के लिए हर किस्म की हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सीएम हिंदुस्तान में वह सीएम है जो किसानों के लिए मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे किसानों के लिए जितना सीएम साहब ने कई स्कीम लाकर उन्हें फायदा पहुंचा जा रहा है। अगर आप एक खराब नहीं खरीदेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, पर हमारे सीएम साहब कभी किसानों को नुकसान होने नहीं देंगे, उनकी हर तरीके से मदद करेंगे। और हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। ये बीजेपी गवर्नमेंट किसानों की दुश्मन गवर्नमेंट है, अवाम की दुश्मन गवर्नमेंट है। हमारे साबिक हमारे लीडर्स अभी आपको बता चुके हैं। हमारे मिनिस्टर साहब डिटेल में आपसे बात करें कि तेलंगाना के साथ हमारे सीएम साहब ने क्या क्या स्कीम लाकर फायदा पहुंचाया। और उसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हमारे साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं, ये गलत है। उसी लिए हम आज एहतजाज करने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट के एमएलए, तमाम पार्टी लीडर्स, एमएलसी और सब लोग यहाँ जमा हुए, सारी आवाम, सारी बहनें और भाइयों ने आज हम धरना दे रहे हैं। हमें बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे साथ नाइंसाफी मत करो। और हमारे लीडर महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। केसीआर साहब की तरह लीडर हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो आवाम की खिदमत करना चाहता है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहता हूँ जब तक हमारे सीएम साहब कहेंगे हम बराबर धरना देते रहेंगे, हड़ताल करते रहेंगे। और जिस तरह हमारा जीडीपी रेट है इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे सिंगापुर, हमारे बांग्लादेश। तेलंगाना के सरकारी विप बालका सुमन ने रियासत से धान की खरीदारी न करने पर मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मंत्री हाल में किए गए धरना प्रोग्राम में काफी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत धान की पैदावार की खरीदारी से इनकार करते हुए गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रही है। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि वो किसी भी कीमत पर रियासत से अजनास की खरीदारी करे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत को मुल्क के किसानों से कहीं ज्यादा अहम सनतकारों, अंबानी और अडानी की फिक्र है। उन्होंने मरकजी वज़रा पर तेलंगाना के खिलाफ मुतकब्बिराना रवैया अख्तियार करने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि हैदराबाद में साल 2020 में आए सैलाब में हुए नुकसान पर मरकज की जानिब से तेलंगाना की कोई मदद नहीं की गई। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि एनडीआरएफ की रियासतवारी फहरिस्त जारी की गई। इसमें हैदराबाद में आए सैलाब पर तेलंगाना हुकूमत को किसी भी किस्म की मदद का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिबदारी को जाहिर करता है। कविता ने कहा कि हैदराबाद में बदतरीन आफात समावी सिलसिलावार सैलाब देखे गए थे। वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत आवाम के लिए दीवार की तरह खड़ी हो गई। कविता ने कहा कि उन्हें मरकज से मदद की उम्मीद थी। कविता ने इस ट्वीट के साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा फेरिस्त को भी पोस्ट किया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों को दी गई माली इमदाद की तफसीलात फराहम की गई।
सिविल सप्लाईज भवन और विद्युत सौदा के मुहासरे से रोकने के लिए पुलिस ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन को नजरबंद कर दिया। बिजली की शरहों और रियासत में ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के बेशतर कायदीन ने एहतजाज की अपील की थी। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, पार्टी के कारगुजार सदर महेश गौड़, सीनियर कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, मल्लू रवि, दासजू श्रावण, एच वेणुगोपाल, बी जॉर्डसन और नागेश मुदिराज के साथ साथ दीगर कई कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर कांग्रेस के कायदीन को नजरबंद किया। पुलिस की भारी तादाद जुबली हिल्स इलाके में वाक़ रेवंत रेड्डी के मकान के करीब तैनात कर दी गई। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ मुल्कगिर हड़ताल के हिस्से के तौर पर कांग्रेस के कारकुनों ने रियासत भर में कलेक्ट्रेट के सामने मुजाहरे किए। बादजा उन्होंने कलेक्टर्स को मेमोरेंडम भी हवाले किए। क़ब्ल रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के जिले लीडरों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो कीमतों में मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से कमी किए जाने तक जद्दोजहद जारी रखें। మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్న జాగ్రత్త వెరీ సూన్ చాలా తొందరగానే మళ్ళా ప్రజలు తిరగబడతారు, ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు. ఈ పెరిగిన ధరల మీద బీజేపీ మీద కానీ, పెట్రోల్ మీద కానీ, గ్యాస్ మీద కానీ, లేకుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మీద కానీ, లేకుంటే మన వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయకుంటే కేసీఆర్ ఊరి పెడతారు. కానీ కేసీఆర్ కి టీం ఏదో ఉందో భజన మండలి టీంను అందరినీ వెరీ సూన్ గా వాళ్ళను ఊరిపెట్టే సమయం ఆసన్నమైంది. మీకు కూడా చెప్పేది ఏమంటే, మేము కూడా 45 సంవత్సరాలు అధికారం చేసినాం, కానీ ఇంత ఎవరికంటే వారికి అరెస్ట్ చేయాలి. అంత పెద్ద తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో కూడా ఎవరిని అరెస్ట్ చేయలేదు. మిలియన్ మార్క్స్ ఇచ్చినాం. तेलंगाना में बिजली की शरहों के साथ साथ पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज की अपील के पेश नजर पुलिस की जानिब से कांग्रेस के कई कायदीन बशमूल सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी को घर पर नजरबंद कर दिया गया था। ताहम रेवंत रेड्डी पुलिस को चकमा देकर किसी तरह घर से निकलते हुए एहतजाज में शामिल हो गए। कांग्रेस के सीनियर कायदीन की एक वफद ने बादजा कमिश्नर सिविल सप्लाईज के दफ्तर पहुंचकर उनको मेमोरेंडम हवाले किया। कांग्रेस ने सिविल सप्लाईज भवन और विद्युत सौदा का मुहासरा करने का ऐलान किया था। इस एहतजाज के मौके पर पुलिस ने कांग्रेस के कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। रेवंत रेड्डी को सुबह में पुलिस ने घर पर नजरबंद किया था। आज रियासती महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में महिला कांग्रेस की ख़वातीन ने भी रियासत के अलग अलग हिस्सों में खासकर हैदराबाद में एहतजाज में हिस्सा लिया।
शहर हैदराबाद में मंशियात के मामलात में इजाफे के खिलाफ यूथ कांग्रेस की जानिब से शहर के पब्स के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। कल शब किए गए इस एहतजाज में यूथ कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और हैदराबाद में बढ़ते हुए पब कल्चर की मुखालिफत की। दूसरी तरफ कांग्रेस कारकुनों ने जुबली हिल्स से बाइक रैली भी निकाली, ताहम पुलिस ने कांग्रेस कारकुनों को रोककर हिरासत में ले लिया और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन कारकुनों ने अपने हाथों में कांग्रेस के परचम को थामकर मुखालिफ मंशियात, मुखालिफ पब कल्चर और मुखालिफ हुकूमत नारे लगाए। మొన్న పుడింగ్ అండ్ మింక్ అనే పబ్బులో ఏదైతే సంక్షోభం జరిగిందో, ఏదైతే సమస్య ఎదురైందో, మరి దాంట్లో పోలీసులు డ్రగ్స్ ని పట్టుకున్నారు। 150 మంది మరి ఎవరైతే బడా బాబులను పారిశ్రామికవేత్తల కొడుకులను। सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज 14 अप्रैल को आलमपुर से होगा। इस दूसरे मरहले में बंडी संजय कुमार 387 किलोमीटर का सफर करते हुए 10 असेंबली हलकों, 3 पार्लिमानी और 5 अजला से गुजरेंगे। आज INN चैनल से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान टी वीरेंद्र गौड़ ने कहा कि सदर बीजेपी इस प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल करेंगे और तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आने पर हल करने का तयख्खुन देंगे। सेकेंड फेज प्रजा संग्राम यात्रा आलमपुर से शुरू होने वाला है। आलमपुर से शुरू होकर गदवाल, वहाँ से मक्तल, मक्तल से नारायणपेट, नारायणपेट से देवरकद्रा, देवरकद्रा से महबूबनगर, महबूबनगर से जिटचर्ला, जिटचर्ला से नागर कर्नूल, वहाँ से कलवकुर्ती से महेश्वरम में ये प्रजा संग्राम यात्रा श्री बंडी संजय जी करने वाले हैं। इससे पहले जो प्रजा संग्राम यात्रा करे थे वो संग्राम यात्रा में बहुत रिस्पॉन्स आया था। बहुत सारे लोग उनके आके उनके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को उन्होंने बताया और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप जब भी गवर्नमेंट में आएंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल के हज़ारों लोग पिटीशंस दिए थे। उसी तरह इस बार भी हम ऐसा होगा बोल के हम सोच के इस बार और ज़्यादा इंट्रैक्शंस लगाने वाले श्री अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी पूरा मिला के 387 किलोमीटर चलने वाले हैं। 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, 3 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज और 5 ज़िले को वो कवर करने वाले हैं। सेकेंड फेज। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस
1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए रियासत में अपना नया असली प्लांट कायम करेगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस बात का इंकशाफ किया कि कंपनी की जानिब से इसके यूनिट के कयाम का ऐलान करते हुए उनको मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और स्किलिंग पर कंपनी ने रियासती हुकूमत के साथ एक MOU साइन किया है। केटीआर ने कहा है कि कंपनी 25 साल से बेहतर खिदमात फराहम कर रही है। सिद्दीपेट जिले के तिम्मापुर में 600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। नए यूनिट के लिए यहां पर 48 एकड़ अराजी हुकूमत ने अलॉट की है। कंपनी ने हुकूमत के साथ 4 माहिदात पर दस्तखत किए हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आलमी यौम सेहत की तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत तमाम के आलमी दर्जे और काबिल दस्तरस सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि अवाम और निगहदाश्त सेहत के शोबे की खिदमत और उनके विजन ने तेलंगाना को आलमी तिब्बी मरकज में तब्दील कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ 2012 में निर्मल में नफरत अंगेज तकरीर मामले पर खुसूसी अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। स्पेशल सेशंस कोर्ट फॉर MP एंड MLA केसेस हैदराबाद अब इस मामले पर 12 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट मुनक्किद किए जाने वाले इम्तिहान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नीट इम्तिहान 17 जुलाई को होगा। दरखास्त देने का अमल शुरू हो चुका है। दरखास्तें 6 मई तक दाखिल की जा सकती हैं। ये टेस्ट मुल्क भर के 543 शहरों और 13 जबानों में लिया जा रहा है। तेलुगु में भी इम्तिहान लिया जाएगा। मौजूदा उम्र की हद को खत्म कर दिया गया है। पहले 25 साल से कम उम्र के लोग इम्तिहान लिखने के लिए अहल थे। ताहम ओपन स्कूल और प्राइवेट तौर पर 12वीं जमात यानी इंटरमीडिएट पास करने वालों को दरखास्त देने की इजाजत नहीं है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने जुमेरात को द्रौपदी गार्डन में आने वाले त्योहारों श्री राम नवमी, हनुमान जयंती के इनेकाद के सिलसिले में डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में JHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, श्री राम नवमी उत्सव समिति के अरकान और R&B बिजली और आग के महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। CP आनंद ने अपने खिताब में हाजरीन पर तालमेल को हमवार करने पर जोर दिया। उन्होंने JHMC कमिश्नर और महकमे के दीगर सरकारी अफसरान के साथ मंगलहाट और रामकोटी के दरमियान मरकजी जुलूस के रूट का मायना करने के बाद श्री राम नवमी शोभा यात्रा के इंतजाम के बारे में मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस ने आने वाली शोभा यात्रा के लिए एक वसी हिफाजती मंसूबा तैयार किया है जो अकीदतमंदों की भीड़ को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। अमन व अमान और हिफाजती इंतजामात में चौकस रहने की हिदायतें दी गई। अवाम भी पुलिस रजाकारों के साथ ताउन करे और इन त्योहारों से लुत्फ अंदोज हो। ये जुलूस सीताराम बाग मंदिर, भोईगुड़ा कमान, पुराना पुल, गांधी मुजस्समा, बेगम बाजार, छतरी, ऐसे बाजार, गौलीगुड़ा कमान, आंध्रा बैंक एक्स रोड से होता हुआ हनुमान व्यायामशाला स्कूल रामकोट के इलाकों से गुजरेगा। आज मेहदीपट्टनम के इलाके में काफी ट्रैफिक जैम देखा गया है। ट्रैफिक जैम मेहदीपट्टनम से लकड़ी का पुल के दरमियान देखा गया, जहां कई गाड़ियां जिनमें एम्बुलेंसेस भी शामिल थी कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसी रही। पुलिस ने इस ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए काफी मशक्कत की। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। शुमाली तेलंगाना के इलाकों जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामागुंडम, भद्रादरी, कुत्तागुडम, महबूबनगर में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बाज अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगरचे के अप्रैल के आखिर और मई में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाता है, ताहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है। इसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।